हमारे बीच मोहतरम गैसुद्दीन अंसारी और अनवर अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं, राष्ट्रवादी के दो दिग्गज लीडर। हम आपका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। So back to cricket now. Good afternoon, all of you, wherever you are, from One Man Show. Khalid Guddu, Shayan Ansari, Sajid Qureshi and Salim Ansari. To openers on the ground, Ramnik won the toss, decided to field first. Mukesh fams him, Ramnik Kohli. Mukesh Joshi fam team. First ball put away in the air, could be caught. Oh, what a prize wicket claimed by the bowler Kalpesh, and Pratik Boyer, in-form batsman, out for duck. This is a shaky start from Maratha Punjab. Pratik Boyer is out for duck and Maratha not for one wicket. Mukesh Joshi fam team, Ramni Kohli and Yogesh Boyer fam team, Maratha Punjab. Pratik Boyer on his way for duck, and in place of Pratik Boyer, new batsman in, I think, new batsman in Hari Joshi. And here goes Kalpesh. Both this time batsman check his stroke with the short back leaf, dig out to mid-on, and with the stroke batsman through for one. Dipesh Mali off the mark, and Maratha Punjab won for the loss of one wicket. Yashpal Mali off the mark. Here he go, right arm round the wicket. This time away from the upper stump, he bows in Dusra Molla. White signal from umpire. 1 to score now, his score moves up to 2. Two for the loss of one wicket. Right arm round the wicket. This time tucked away on the onside with this soft hand, and batsman through for one. 1 to score now. Both batsmen open their account, and his score is 3 for the loss of one wicket. This time beautiful ball, beats him outside of a stump. What a delivery. Lovely delivery indeed. Cone delivery. There is a little bit extra bounce. Batsman Ishpal Mali tried to play through his legs. Lovely ball. This time another fine delivery in front of his leg, tucking on the onside. Long chase for fielder batsman. Complete easy 2 runs. And his score moves up to
5 for the loss of 1 wicket. First over in progress and very slow start from Maratha Punjab. In previous season, Maratha Punjab ranking on number 3, but in this season not including top 10 teams. As far as performance concerned, this time lapped away in the air, could be caught, man under it, yes, he's out. उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी लेकिन जाए यहाँ फील्ड कॉट बिहाइंड की उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर टच से मस नहीं.
बहुत अच्छी गेंद, आगे रखा, अपील कोर्ट बिहाइंड की, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पे उसका दबाव नहीं। लगातार 2 गेंदों में छटाते हुए गेंदबाज मुकेश, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। हरी जोशी काफी कठिनाइयों में, इस मरतबा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, 4 रन। रिवर्स शॉट खेला है वहां पे हरी जोशी ने। ये देखिए किस तरह से रिवर्स खेला था, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन फील्ड के ऊपर से 4 रन। इस मरतबा ऑफ कटर थी, कंट्रोल ऑन साइड पे मोड़ा था अपने सीने के सामने हरी जोशी ने 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। आतिश पाटिल जो ग्रामीण क्रिकेट में ऑलराउंडर की फहरिस्त में नंबर 1 पे रैंकिंग कर रहे हैं, 3 मैन ऑफ द सीरीज लिए हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट में 1 नंबर पे गैसुद्दीन शेख, 2 नंबर पे सूरज जोशी, 3 पर संतोष मडवी, 4 पर सूरज केनी, 5 पर आतिश बामड़े। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। कहीं भी लग नहीं रहा है कि मराठा पंजाब एक अच्छी पोजीशन में है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए कल्पेश को कंटिन्यू रखा है। इस मरतबा पैरों के सामने बहुत खूबसूरत ड्राइव ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में 17 पे पहुंचा है स्कोर। एक रन से 17 पे पहुंचा है स्कोर। कल्पेश, इसके बाद आज का आखिरी मुकाबला बालाजी स्पोर्ट और एफआर स्पोर्ट्स के बीच में होने जा रहा है। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए कल्पेश। आतिश पाटिल बहुत ही क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर हैं। इस सीजन में 6 गेंदों में 6 चौके लगाने वाले बैट्समैन हैं। साथ ही नंदन पाटिल भी हैं। चिप की हवा में गेंद के ऊपर आके आंखों के नीचे शॉट को खेलते हुए 1 रन। स्कोर 18 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे।
अभी तक बहुत ही कंट्रोल गेंदबाजी हम देख रहे हैं। आज जानवी स्पोर्ट ने कीर्तिमान स्थापित किया। इस सीजन का सबसे सर्वाधिक टोटल, अगर 6 ओवर की बात करें तो हम पिछले 25 साल में 6 ओवर में जो ज़्यादा टोटल बना था वो 139 रन जो महिंद्रा स्पोर्ट्स ने पिछले लेट राजीव गांधी में रमनी कोहली के सामने बनाया था। 94 रन बिलाल शेख ने बनाए थे। ओवरऑल 8 ओवर की बात करें तो फिर जगदीश नाइक और जय दुर्गा ए के नाम रिकॉर्ड है। इस मरतबा स्विंग कर दिया ऑन साइड में, हरी जोशी भी आउट, सीधा डीपी स्क्वायर लेग पर। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पे बैट्समैन। नए बैट्समैन राजू बल्लेबाजी को आए हैं। इस मरतबा ऑफ हिज हिप्स फ्लिक करते हुए ऑन साइड में 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 19 पे पहुंचा है। इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव, कैप के अंदर कोई मौका नहीं, 4 रन। जाजिबुल नजर शॉट और आज के दिन का सबसे खूबसूरत दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक। ये देखिए बिल्कुल गेंद के ऊपर, ओहो, बहुत ही क्लासिकल शॉट, 4 रन। आतिश पाटिल न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है लेकिन उनके शॉट्स भी इसी तरह बहुत खूबसूरत रहते हैं। आप कितने अट्रैक्टिव हैं ये माने नहीं रखता है, आप कितने इफेक्टिव हैं ये माने रखता है। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, हुक किया लेकिन गेंद को लपक लिया वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, आउट हो गया आतिश पाटिल। अधूरे मन से हुक शॉट खेला था, ताकत को नहीं लगाया था आतिश ने। तीन ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर चल रहा है और चारों के चारों विकेटें कल्पेश ले चुके हैं। ये हम कह सकते हैं कि कल्पेश ने लगभग मराठा पंजाब की जो बल्लेबाजी है उसको वाइट वॉश कर दिया है।
नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गए हैं दीपेश माली। दीपेश माली के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी बल्लेबाजी को आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सर दर्द बन जाते हैं। बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के, और पिछले साल तो गजब के फॉर्म में चल रहे थे। गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया गया है, मुकेश को मोर्चे पे लगाया है। इस मर्तबा बहुत बढ़िया गेंद, जड़ से टकराई थी, रन नहीं बना। हुसैन राजस्थानी ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। स्पेशली दीपेश माली को। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा रिवर्स करने की कोशिश। विकेट कीपर लगातार अपीलें कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी। स्कोर इस वक्त 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है और अभी तक अगर अजय गलत हम देखें तो जो फैसला रमनी कोहली का है वो सही नजर आता हुआ। इस मरतबा रिवर्स करने की कोशिश, ऊपरी सिरा, गेंद जाएंगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये देखिए किस तरह से बॉटम ऑफ द बैट लगी थी गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे। बहुत बढ़िया। ये देखिए कैच को उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर दाग अच्छे हैं, आप कैच लेते हैं तो। पांचवा विकेट गिरता हुआ। अब सब कुछ डिपेंड करता है दीपेश माली पे। अभी तक बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की है रमनी कोहली ने।
इस मरतबा धीरे से पुश करते हुए ऑफसाइड में 1 रन बना। इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति लगता नहीं है कि ये मराठा पंजाब का स्कोर है। यहाँ पे 4 ओवर में जानवी ने 82 रन बनाए थे, मराठा पंजाब ने 4 ओवर की समाप्ति पे बनाए केवल 30 रन। अजय गरज जो परफॉर्मेंस पिछले साल मराठा पंजाब का था और जिस तरह से कप पे कप जीतते जा रहे थे, फाइनल में पहुंचते थे, सेमी तक स्थान तो उनका पक्का था, कहीं ना कहीं या तो उनके गेम प्लानिंग में, या तो फिर उनके परफॉर्मेंस में, या तो फिर उनकी टीम कमिटमेंट में कमी नज़र आई है इस सीज़न में। ये भी अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ से आप लेट देवीदास कप देखेंगे चैलेंज पे 10, 11 और 12, और फिर इसी ग्राउंड पे गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज़ द बेस्ट। बाली ट्रॉफी एक अलग अंदाज में आपको नज़र आएंगी। बचे हुए दौर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं सदाबहार क्रिकेट में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज से। जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से मराठा पंजाब का प्रदर्शन जो है इस सीज़न में उतना अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा पिछले सीज़न में था। एकजुट होकर टीम खेलती हुई नज़र नहीं आई है। और इस मैच में हम बात करें तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है और फील्डर्स ने अच्छा साथ दिया है रमनिक स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को। घूमी, जब गेंद घूमती है तो बल्लेबाज घूमते हैं। दीपेश माली ने क्रिस बॉक्स से खेला था शॉट को। कैफी आजमी ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे 3 से 10 मार्च को आप देखेंगे, जिसमें 9 मार्च को हमारे साथ रहेंगे यूसुफ पठान और 10 मार्च को बिग बी अमिताभ बच्चन। संकित का ये पहला ओवर है। पहली गेंद में काफी टर्न देखने को मिला। दीपेश माली 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पेविलियन चोर से संकेत। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। फिर से समझ नहीं पाए थे दीपेश माली। घुमा रहे दीपेश माली जैसे बैट्समैन भी इस वक्त एतमाद से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। दबाव एक ऐसी चीज है, लेकिन पूरे सीजन में मैंने धनेश और बी इंडियन 2 टीमें ऐसी है जिनको देखा है कि दबाव में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। धनेश का तो लाजवाब। इस बार करारा पुल, बढ़िया शॉट, 6 रन। रॉकेट के मानित गेंद निकल गई थी, फील्डर उछले भी नहीं थे कि गेंद उनके ऊपर से चली गई। बहुत ही ताकतवर पुल, सारा गुस्सा निकाल दिया उस गेंद पर। बहुत ही फ्लैट 6 दीपेश माली के बैट से। 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर मराठा पंजाब का 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दीपेश माली अभी भी क्रीज पर है और दीपेश माली यदि आखिर तक खेलते हैं तो 60 के आसपास भी स्कोर पहुंच सकता है। क्षमता है उनके अंदर। एक ऐसे बैट्समैन है जो किसी भी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। फुल टॉस और ये तो निश्चित रूप से बाहर। 6 रन और। ये देखिए, 2 तुम्हारी 2 हमारी, 2 अच्छी गेंदें और 2 सिक्सर। यही दीपेश माली की खासियत है। एक बार अगर वो जम गए तो फिर उनको रोकना मुश्किल होता है। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश गेंदबाज संकेत की। पहली 2 गेंदें उन्होंने आगे रखी थी, बहुत अच्छी गेंदें की थी, लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट पिच गेंद और अब ये फुल टॉस गेंद महंगे साबित होते हुए। इस बार बेहतर लंबाई की गेंद थी, अंदर लगी है बैट के, मिड विकेट पर फील्ड किया गया। सिंगल मिलता हुआ दीपेश माली को। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 7 गेंदें पारी में शेष है, यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो।
और इन बची हुई 7 गेंदों में अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश में बैट्समैन। प्रशांत ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, नंबर 7 पर आए थे। अपील और इस बार उंगली ऊपर उठती हुई हसन मोमिन की। आखिरकार विकेट प्राप्त किया यहां पर संकेत ने। इसके साथ ये ओवर भी समाप्त हुआ। 13 रन आए ओवर से, 43 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों के कैप्टन, बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी और एफआर स्पोर्ट्स के कैप्टन, ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा, टू पे लगी थी। अंपायर के लिए तो फैसला बहुत आसान था। जी हाँ, मिडिल लेग स्टंप पर जाकर टकराती। बहुत पीछे खेल रहे थे, स्टंप्स के काफी नजदीक थे बैट्समैन। क्रिस के कोने से किया था, गेंद अंदर की तरफ आई थी हवा में। नए बैट्समैन यासिर शेख। यासिर तो मूलतः अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी दिखा दिया है कि वो भी बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। हालांकि इसी ग्राउंड पे वो शाम में प्रैक्टिस जब करते हैं तो ऊपर पतरे पे सिक्स लगाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस और मैच का जो दबाव रहता है उसमें बहुत अंतर रहता है। जी हाँ, देखना है इस आखिरी ओवर में कितने रन बना पाते हैं। क्या स्ट्राइक मिलेगी यासिर को? इस समय स्ट्राइक दीपेश के पास। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज आलोक मुकादम। इस बीच अगेन फ्लिक किया हवा में, ओहो बढ़िया कोशिश, डाइव किया लेकिन गेंद निकल गई पहले बाउंस पर। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। अगर ये कैच होता तो फिर बहुत ही मुश्किलात पेश आ सकती थी मराठा पंजाब को। ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया था, फ्लिक कर दिया था, बढ़िया कोशिश वहां पर। और वाकई में आज जान की बाजी लगा रही है रमनिक। कपड़े भले से मैले हो जाए, सर्फ एक्सेल है ना, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन 4 महत्वपूर्ण रन यहां पर मराठा पंजाब के खाते में। रामदास चौगले नयगांव से कह रहे हैं कि सदाबहार क्रिकेट में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत को आप सुन रहे हैं। आपके लिए भी उन्होंने कहा है हरफन मौला कमेंटेटर। वाकई में रन संख्या 47, 6 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद देना चाहेंगे हम रामदास जी को, जो हमारा हौसला हर वक्त बढ़ाते हैं। देखना है वहां पर शायद गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है। अजय गरत, ये समस्या अब बहुत ज्यादा हो गई है। गेंद का जब शेप या उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, इससे पता चलता है कि बल्लेबाजों का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हो गया है और बल्ले किस तरह के आ रहे हैं। बिल्कुल बात निकली शक्ल की, तो गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी कि आईने में कोई दूसरा लगे मुझे। गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी कि आईने में कोई दूसरा लगे मुझे, और मुसीबतों ने किया इस कदर हाल मेरा, मिजाज पूछने वाला बुरा लगे मुझे। वैसे तो स्कोर पूछ रहे थे वहां पर। या सिर्फ 47 रन हुए हैं, 47 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हमारे बीच गैसुद्दीन अंसारी साहब, मेरे ख्याल से पश्चिम के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष अनवर अंसारी हैं। नूरुल शेख साहब हैं, नवाब हैं, नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन शहजाद हैं, नवाब स्पोर्ट्स के ओपनर। आप सभी का इस्तकबाल है।
गेंद बदली गई है। दीपेश माली अच्छा खेल रहे हैं 18 पर। फुल टॉस हवा में और सीधे फील्डर के पास कैच छूटा। लॉन्ग लेग बाउंड्री पर फील्डर थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। दूसरे की कोशिश, ओवर थ्रो हुआ और 2 रन पूरे। नहीं, मिला जुला असर लग रहा है दीपेश माली की बल्लेबाजी में। उन्हें नसीब का भी साथ मिल रहा है और बल्ले का भी, और क्रिकेट में नसीब का साथ भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, तकदीर और तरकीब दोनों का खेल रहता है। बिल्कुल, क्रिकेट हो या फिर जिंदगी का सफर हो, नसीब तो हर जगह अहम रोल अदा करता है। फिर से फुल टॉस, अपील और आउट। आखिरकार पलटते हुए पेविलियन की दिशा में दीपेश माली। नहीं, आज उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले लेकिन वो दीपेश माली नजर नहीं आए जिसके लिए वो मशहूर है। आज शॉट को टाइम भी नहीं कर पा रहे थे, आउट होके जा रहे हैं। अभी भी हम नहीं कह सकते कि सेफ टोटल है। जहां पर 70 के लक्ष्य को छुआ है, माना कि मराठा पंजाब के पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है। इस मर्तबा नसीब का साथ नहीं था, आउट हो गए LBW। नए बैट्समैन प्रभाकर बल्लेबाजी को जा रहे हैं। ये भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, ग्रामीण क्रिकेट में अच्छी छाप है इनकी। यहां से तो ऐसे लग रहा है कि रमणीक स्पोर्ट्स के पास एक अच्छा मौका है एक अपसेट करने का। बात नसीब की चली थी, बहुत ही मशहूर शेर है कि मैं किसी के दस्ते तलब में हूं। दस्त अजयगरत हाथ को कहते हैं। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। सात बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 49 के स्कोर पर। आखिरी 3 गेंदें पारी में शेष। प्रभाकर सामना करते हुए ठीक तरह से नहीं खेल पाए। विकेट कीपर से रुकी नहीं थी गेंद, 1 रन। बल्ले से लगने पर चली गई थी। देखना है यासिर शेख जिन्होंने गेंदबाजी बहुत तेज की है और भिवंडी क्रिकेट तालुका के इस वक्त वो सबसे तेज गेंदबाज है। 50 रन पूरे हुए हैं सिंगल के साथ। गति परिवर्तन आगे रखा, मिसफील्ड और उसका लाभ मिलता हुआ यासिर को। लंबे लंबे टक भरते हुए 2 रन पूरे किए। रमनी कोहली के स्पॉन्सर अगर हमारे बीच हो मुकेश जोशी, तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। योगेश भुईर हमारे बीच में हो तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। धीमी गेंद थी, लेग कटर। ये भी वैसी गेंद थी, इस बार शॉट थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। बॉलर ने उठाया, दूसरे की कोशिश हो रही है और बैट्समैन रन आउट। तो इस तरह से ये पारी समाप्त हो चुकी है मराठा पंजाब की। केवल 53 रन बनाए हैं और 54 रनों की चुनौती रमणीक स्पोर्ट्स ओवली के सामने मैच को जीतने के लिए। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें दयानंद चोरगे फैम टीम, बालाजी स्पोर्ट और FR स्पोर्ट्स। इस वक्त आइए, इस वक्त ग्राउंड में मेरे साथ सन ऑफ भिवंडी के सूरज जोशी टीम के कैप्टन, बालाजी के ऑल द बेस्ट सूरज, और FR के जुरैर। मैं उपाध्यक्ष अनवर अंसारी और पश्चिम के अध्यक्ष राष्ट्रवादी गयासुद्दीन अंसारी से गुजारिश करता हूं कि आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस को अंजाम दही तक पहुंचा रहे हैं। आप
अपने पैरों को जहमत दे और यहाँ तक आने की जहमत गवारा करे। आइए अनवर अंसारी साहब और गैसुद्दीन साहब हमसे जुड़ते हुए। टॉस होने जा रहा है। हेड कहना है जुरैर का और आया भी हेड है। जुरैर ये बताइए, राष्ट्रवादी में इस वक्त अब टेलीकास्ट भी हो रहा है, चाम भी बढ़ गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा टूर्नामेंट बहुत कम होता है और वो भी अपने को लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ऐसे लोग अपने जो बाहर के लोग हैं वो भी देख सकते हैं हमें। ये बताइए, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम बैटिंग करना चाहेंगे पहले। इसका रीज़न है कि बालाजी टॉप 8 में शुमार होता है और उनके सामने आप किसी तरह का चेसिंग प्रेशर नहीं लेना चाहते, यही रीज़न है या फिर आपके गेम प्लानिंग का कोई हिस्सा है? हमारा गेम प्लानिंग का ये हिस्सा है क्योंकि हमको पहले बैटिंग करना ही था, क्योंकि हमको टारगेट उनको देने का है। 6 ओवर में क्या माइंड में लक्ष्य है उनके सामने रखने का? हमारा मिनिमम 60 रन्स का है। देखिए 60 तक जाने के मैंडेटरी पावर प्ले, बालाजी बहुत मजबूत गेंदबाजी की साइड है, वो कौन से बैट्समैन है जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। आवेश है, जाकिर भाई है, 2-3 बैट्समैन अच्छे हैं। हमारे पास बॉलिंग लाइन भी अभी अच्छी हो गई है। पिछले मैच की तरह 2 बॉलर हमारे कम थे, अभी वो 2 बॉलर वापस आ गए। उम्मीद करें कि आप फाइट करने जा रहे हैं। बेशक। ऑल द बेस्ट। सूरज सन ऑफ पेवंडी, आपको मापुली क्रिकेट धमाके में इसलिए खिताब दिया था कि अगर आपके 10 साल के इतिहास को हम देखें तो सुनहरा इतिहास, लेकिन राष्ट्रवादी का ये 10वां साल है, यहाँ आप आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। यहाँ की क्राउड भी हम लोग को ज़्यादातर सपोर्ट करता है और यहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत मज़ा आता है हम लोग को। सूरज ये बताइए, टॉस इम्पोर्टेंट था आपकी नज़र में, अगर जीतते तो आप क्या करते? जीतते तो हम लोग भी बैटिंग ही करते थे। अभी फील्डिंग आई है तो वही। आपने कभी भी किसी टीम को लाइटली नहीं लिया है, एफआर को कहाँ तक रोकना चाहेंगे? नहीं, वो भी एक अच्छी टीम है। हम लोग अभी कौन सी भी टीम रहे भिवंडी की, जो अच्छी टीम है, तो हम लोग जैसे अपना अच्छा गेम खेलते वैसे अच्छा गेम खेलने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कासिम बाबू, सूरज, अन्य जो गेंदबाज है, उससे कप्तान क्या अपेक्षा रखते हैं कि आपने यहाँ पर 2 फाइनल मुकाबले खेले, टीम को आगे बढ़ाने की किस तरह की गेंदबाजी करें? मेरे सब गेंदबाजों से यही कहना है कि वो अच्छा गेंदबाजी करे, 100% देने की कोशिश करे और फील्डिंग में भी सब फील्डर 100% देने की कोशिश करे। सूरज चमक रहा है, सूरज की गेंदबाजी चमकेंगी? कोशिश तो करूंगा सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड इज FR won the toss, they decided to bat first. Is back to the commentary box. Ajay Karath is there. धन्यवाद सिद्दीक बाबे। बहुत ही रोमांचक 6 ओवर्स यहाँ से होने की उम्मीद है। रमणीक स्पोर्ट्स के सामने 54 रनों की चुनौती है। रमणीक स्पोर्ट्स की सलामी जोड़ी इस समय मैदान में प्रवेश करती हुई आलोक मुकादम और कैप्टन अनंता। Yes, Alok Mukadam, one of the class player, and he what a reply in previous year against Mahendra when Bilal made 94. 54 रन का
लक्ष्य है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं कहा जा सकता। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि 70 प्लस भी चेस हुए हैं, और यदि मराठा पंजाब को मैच को जीतना है तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तीनों अंपायर्स विलास यादव, हसन मोमिन और शकील कोटी बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे प्रशांत। अनुभवी गेंदबाज है मराठा पंजाब के, और इस मैच में तो काफ़ी सारी उम्मीदें उनसे रहेगी कैप्टन को। आवश्यक रन रेट 9 रन प्रति ओवर। So back to cricket now is going to be Ekta Misail Prashant. First ball to Alok, it's over the infield. One bounce cross the boundary for 4. This is a positive reply from Ramni Kohli, and this is the dangerous indication for Maratha Punjab. Not a greatest of delivery to start with for Prashant. Lower full toss outside the off stump, easily put away. Yes, loosener delivery and firmly driven over infield. One bounce cross the boundary. This time another mighty. Should be a 6, yes it is. A massive hit from Alok Mukadam down the ground. Terrific start from Ramnik. Even better and even bigger shot. Class. With the straight willow. Have a look at that. Full face of the bat. And over the bowler's head. All the way for 6. Yes, very worried captain. Middle conference going on. Raju having a word with Ekta Misail. Atish Patil is there. Yasir is there. Because not enough total on the board. Ramnik chasing. Only 54. 9.00 the asking run rate, and first 2 ball 10 runs from Alok Mukadam. Dangerous player he is. Here we go. Boss this time try to cut too close from his body, and ball is keeping low. Beam outside the off stump. Yes, sir, that one kept low outside the off stump. Incoming movement. And too close for a cut. No room given by Prashant. This time edging. But there is a nobody patrolling his slip. With the Stoke batsman cross for a easy single. 11 for no wicket. Not a very good Stoke. Last one was it tried to play in the crease box. So Alok's intentions are very clear. That one was held the edge, but luckily for the batsman. Yes, clear sign from Alok is attacking. So 11 for no wicket, Ramni Kohli. Here goes Prashant. He bows this time, opened the face of the bat, played very late. Straight to Gali, and with the Stoke batsman through for 1. Ananta off the mark. This is the good tactic, Ananta sending open the inning. He is a technical batsman. He off the mark with 1 and his score is 12 without loss. This time shot rising but close from his body, check his stroke and tapped his ball back out of the point for 1. That marks end of the very expensive over from Ekta Misail Prashant, given me 13 runs. So it's a wonderful start for Ramnik Sports, 13 without loss. Nurul and Sheikh, Shehzad and Nawab watching from VIP dice. Nawab Sport done a fantastic job, and I think tomorrow the important match, the 4th one between Nawab and Mayuresh. Today's highlight, what an excellent inning from Amish Balere.
57 runs, 6 sixes and 3 boundaries. Now, Rakib brought into the attack from far end, from Haji Somerset stand end, and facing him batsman Alok Mukadam, the captain of Ramni Kohli, Mukesh Joshi fam team, left arm round the wicket. Goes to Alok, snatched away over the infield, firmly square driven, couple of bounces cross the fence for 4. The infield taking its chances. Just open the pace of the bat there and easily put away over the infield for 4 runs. Yes, problems are there for Maratha Punjab's captain because bowlers are leaking runs. 17 without loss. Ramnik Sports. Alok Mukadam on 16. So far he played a great knock. Rakib ball, perfect Yorker. Very good comeback. And with the short back lift, dig out. No runs. Good answer from the bowler. The perfect Yorker. Look at that. This last match, FR won the toss, decided obviously right decision, elected bat first. In the air we watch Rakib. This time Trayvon over the head of the bowler, no chance for Yasir, 4 runs. Another full toss delivery, poor bowling Punjab. It went wrong and nicely played by Alok Mukadam. चरण आपको 1 मिनट के लिए आना है. चरण Second boundary of the over. Score moves up to 21. lovely looking drive, magnificent stroke. Once more he's taken his chances because the mid-on up in the circle and he played left of Yasir for 4. So Mukesh Joshi fam team right on top now. Ramni Kohli 21 for no wicket. And from here I think Maratha Punjab badly needing breakthrough. And there we watch Rakib. Because this time Trayvon in the air, but over goes the Hari's head and slowly but surely well cut off from Hari inside the boundary line. 2 more to total now. Score moves up to 23 and Alok looking in aggressive mood. Now batsman is asking a lot of question to the bowler with his wonderful piece of batting. Once again over the infield, clearing the infield quite comfortably. 23 for no wicket. Second over in progress. This time fine delivery, Bis batsman, Bis wicket keeper. I think there is a half chance of stumping. Missed the opportunity by wicket keeper Raju Patil. 1-2 score now. Score moves up to 24 for no wicket. Yes, that was close, I think. Had been he collected the ball, would have been different story altogether. So he's the lucky man, batsman Alok Mukadam. This time no damage has been done. That marks end of the second over. This is the terrific reply from Ramni Kohli. 24 for no wicket.
2 ओवर की समाप्ति 24 रन, बचे हुए 4 ओवर में सिर्फ 30 रन चाहिए। जो इक्वेशन है बहुत आसान है, 7.50 का आस्किंग रन रेट है और अजयगरत यहाँ से एक ही चारा रह गया है मराठा पंजाब के पास के उन्हें गुच्छों में विकेटें लेनी होंगी। जी बिल्कुल, विकेटें तो निकालनी ही होगी। विकेट्स नहीं निकाल पाते हैं गेंदबाज तो फिर बहुत जल्दी भी मैच समाप्त कर सकते हैं ये दोनों सलामी बैट्समैन। खासतौर पर आलोक मुकादम बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहे हैं। एक छक्का और 3 चौके अभी तक अपनी पारी में जड़ चुके हैं। बॉलिंग में परिवर्तन करते हुए कैप्टन यासिर को अटैक पर लाए हैं। गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता यासिर शेख को लगाया गया है क्योंकि मराठा पंजाब को यहां से विकेट चाहिए। खेल की शुरुआत होती हुई तेज हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है। कल से हम देख रहे हैं कि बहुत ही तेज हवाएं बहती हुई। यासिर शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, पहली गेंद बहुत तेज निकल गई टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास। दुनिया के क्रिकेट में जो तेज गेंदबाजों का अंदाज रहा है वहीं यासिर का भी अंदाज लगता है क्योंकि वो गेंद को जब डिलीवर करते हैं तो उनके मुंह से आवाज निकलती है। जी हाँ बिल्कुल, ग्राउंड में ये आवाज सुनाई देती है। राइट आर्म ओवर द विकेट 30 गज के दायरे से मुड़ते हुए, इस मर्तबा ज्यादा तेज की कोशिश वाइट। 1 रन से स्कोर 25 रनों पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के रमनी कोहली का। हमारे बीच रमनी कोहली के स्पॉन्सर मुकेश जोशी जी जुड़ गए हैं। वीआईपी पे आपका हार्दिक स्वागत है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए यासिर फिर से एक ज्यादा बाहर किया वाइट। ये जो स्थिति है इसमें अपनी टीम या अपने मोहल्ले में रहने में ही खैरियत है। दूसरे के मोहल्ले में आप जाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इस समय तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते वाइट गेंदे करना। मराठा पंजाब के गेंदबाज 2 लगातार वाइट गेंदे कर चुके हैं। अब शायद अपना कोण बदलने के बारे में सोच रहे हैं। कोण बदलने से देखना है कि मराठा पंजाब या यासिर का कहीं नसीब बदल जाता है या नहीं। लेकिन यासिर ने पूरी सीजन अच्छी गेंदबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया है, देखते रह गए वहां पे 6 रन। दीपेश को पता ही नहीं गेंद ऊपर से जाने वाली है। 6 रन। ही कनेक्ट द पेस ऑफ द बॉलर, टुरिफिक स्ट्रोक। कौन बदला था यासिर ने, राउंड द विकेट आए, नतीजा भी बदल गया। पहले वाइट कर रहे थे, अब छक्का खाया। फ्रंट लेग को अलग कर दिया और ये देखिए गेंद दीपेश के सर के ऊपर से। अब सर के ऊपर से पानी जाए या गेंद जाए, दोनों सूरतें तो बहुत ही खतरनाक रहती। समीकरण भी काफी आसान होता हुआ। अब तो 22 रन चाहिए यहां से केवल जीतने के लिए। नहीं, कई बार मैंने कहा कि रमनी कोहली का वो परफॉर्मेंस हमने देख रहे हैं जो पिछले साल था, लेकिन इस टूर्नामेंट में पायनियर रमनी कोहली ने गेयर बदल दिया है। ये टीमें बहुत अच्छा खेल रही है। यासिर बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन उससे अच्छी फील्डिंग यशपाल माली की। 1 रन। नीचे बैकलिफ से ड्राइव किया था, गेंद को खोद के निकाला था। 1 रन से स्कोर 33 रनों पे पहुंचा है। 33 रनों में हम देखें तो अनंता ने सिर्फ 1 रन बनाया है और 2 गेंदे खेली है। मुकेश जोशी जो कि टीम के स्पॉन्सर है, बहुत ही शांत तबीयत के लग रहे हैं। टीम बहुत हॉट लग रही। इस मर्तबा बहुत नजाकत भरा हुआ शॉट, उछलती हुई गेंद थी, कंट्रोल टैप किया था लेकिन फील्डर मौजूद थे। स्क्वायर थर्ड मैन पर 1 रन।
ये जो खिलाड़ी अनंता, ये हमेशा इनका रोल अदा करते हैं अपने टीम के लिए। काफी अच्छा शॉट खेला था वहां पर अनंता ने, और हवा में खेलने की कोशिश नहीं की। क्रिकेट में तो अक्सर कहा जाता है कि somebody play a anchor role। यासिर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से मिसक्यू, देखना है यासिर गेंद के नीचे, बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन कैच छूटता हुआ वहां पर। मैं तो कहूंगा बहुत मुश्किल चांस था, हाफ एंड टफ चांस। जैसे भी हो चांस तो आया था, और इस स्थिति में दर्शक भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कैच ले वहां पर। ये देखिए ज्यादा चढ़ गई थी गेंद बल्ले पर, और बहुत बढ़िया कोशिश थी यासिर की। क्योंकि अब विकेट नहीं मिला तो फिर बहुत मुश्किल है। नहीं, यहाँ पे तो एक ही चढ़ा है, सिर्फ विकेट नहीं, गुच्छों में विकेट। जी हाँ, शुरुआत तो एक विकेट से करनी होगी। मौका आया था लेकिन मौका गवा दिया। रमनिक स्पोर्ट्स की इस समय स्थिति काफी मजबूत है, मुकाबला उनके पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए यासिर। इस मरतबा अच्छी गेंद आगे रखा था, बीट किया रफ्तार से। 3 ओवर की समाप्ति 35 रन, और 3 ओवर में अब केवल 19 रन चाहिए। रन टू बॉल इक्वेशन, ये देखिए रफ्तार पे बीट किया था वहां पर। इस तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता थी, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट पिच गेंदे की अपने ओवर में यासिर ने। बिल्कुल, देखना है कि गेंदबाजी किसको दी जाती है। प्रशांत मात्रे भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्रिकेट कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसे पता था कि एनआर 7 गेंदों में 7 रन नहीं बनाएंगी धनेश के सामने, जबकि 7 विकेट पास में थे। इसीलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगी? आइए आंखों देखा हाल रवां तबसरे के लिए अजय घरत। जी हाँ, क्रिकेट में कुछ कहना मुश्किल है ये कि क्या देखिए होगा। चिमनियों से धुआं उठता हुआ। निदा फाजली ने कहा था कि बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, और तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी कभी बैठे रहिए आप उम्मीद पे। 18 गेंदे 19 रन, समीकरण काफी आसान। विकेट अभी तक कोई भी नहीं गिरा है। आलोक मुकादम बेहतरीन पारी खेलते हुए, एक कैच छूटा उनका पिछले ओवर में। अनंता 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। यशपाल माली, आतिश पाटिल, रकीब सब इकट्ठा आ गए थे। नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं अभी भी, हालांकि थोड़ा बहुत पॉजिटिव जरूर है। खासतौर से आतिश पाटिल अभी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं गेंदबाजों का उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कंधे जब थोड़े झुक जाते हैं तो ये संकेत रहता है कि मैच मेंटेलिटी तौर पे आप गंवा चुके। रकीब का ये दूसरा ओवर। हल्के हाथों से खेला है, ऑन साइड में 1 रन पूरा किया। गेंदबाज खुद कोशिश कर रहे थे लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, और 2 रन पूरे। जोखिम बड़ा रन लिया तो वहां पर आलोक मुकादम ने। अब आलोक मुकादम को देखिए, अब वो थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं, गेंद के आने का इंतजार कर रहे। आप तो हमेशा कहते हैं, मैं कहता हूं कि दिमाग की बत्ती जलती हुई उनकी। उन्होंने भी देखा कि ये बहुत अच्छा मौका आया है मैच जीतने का, तो थोड़ा सा शांत दिमाग से खेलने की कोशिश। पावर प्ले में सही सोच उनकी नजर आई, आक्रामक बल्लेबाजी की उन्होंने। पावर प्ले के 2 ओवर्स में 24 रन बनाए, और यासिर के ओवर में भी 11 रन आए थे। हाजी समझ से टेंट से रकीब, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
फिर से छोटी बैकलिप का उपयोग, केवल पुश किया है ऑफ साइड में, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन। नहीं, अभी तो नाक में दम करने वाली बल्लेबाजी है। जिस तरह से एकाएक गियर बदल दिया है आलोक मुकादम ने, आलोक मुकादम ने साबित कर दिया है कि वो दोनों बैकलीफ का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों तरह का क्रिकेट खेल सकते हैं। स्कोर इस समय 38 रन बिना किसी नुकसान के। 16 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। रन बॉल इक्वेशन। हवाएं काफी तेज गति से बह रही है। सर्कल में एक फील्डर अब बढ़ा दिया गया है। शॉट ऑफ लेन, बहुत फाइन खेला है, 4 रन। कोई भी अवसर नहीं था विकेट कीपर के लिए और ना ही अवसर था शॉट फाइन लेके फील्डर के लिए। काफी फाइन खेला हुआ शॉट, ये देखिए कटर थी, शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया शॉट, महत्वपूर्ण बाउंड्री। जीत के धीरे धीरे नजदीक पहुंचती हुई रमणीक स्पोर्ट्स ओवली टीम 42 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी विकेट की तलाश में मराठा पंजाब। इस बार बीट किया, आउट, लेग बिफोर। हालांकि अंपायर का निर्णय अंतिम रहता है, थोड़े से नाखुश है वहां पर अनंता। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से खेलना चाहता वहां पर। स्कोर इस वक्त 42 रन है और पहला विकेट गिरा है। बहुत ही नजदीकी डिसीजन रहते हैं जो यहां से नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि नीक एज ऑफ द बैट जब लगता है तो उसका सिर्फ साउंड रहता है, लेकिन बल्ला और पैर दोनों साथ साथ थे। काफी देर बाद ये पहला विकेट मिलता हुआ मराठा पंजाब को। 14 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन मुकेश। विकेटों में रखा था, हल्के हाथों से पुश करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड। गेंद को ढूंढते रह गए थे वहां पर यासिर। कोई अतिरिक्त रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने, सिर्फ एक ही रन। 1 रन से अपना खाता खोला मुकेश ने। आलोक मुकादम 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टैप किया है इस बार, बैट का फेस थोड़ा सा खोलते हुए सिंगल के लिए। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे आलोक मुकादम अगले ओवर के लिए। 4 ओवर की समाप्ति, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अजय करत अब 2 ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए, कमाल करना होगा तो जाकर इस मैच में बने रह सकती है, वरना 5वीं ओवर में पिक्चर साफ हो जाएगा कि मैच को कौन जीत रहा है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सांस अभी भी चल रही है इस मुकाबले की, सांस है तो आस है। जी बिल्कुल, और जान है तो जहान है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि अब आलोक मुकादम जो है वो क्या इस ओवर में मैच को खत्म करने की कोशिश करेंगे या फिर आखिर तक लेकर जाएंगे। कल दोस्तों ठीक 9 बजे आप देखने जा रहे हैं हबीब अंसारी फैम टीम बी इंडियन और अलनूर का मुकाबला। दूसरा मुकाबला नरेश माली फैम टीम एनआर भोरपाड़ा और दक्षता चाविंद्रा। तीसरा मुकाबला जबरदस्त मुकाबला आप देखेंगे प्रार्थना स्पोर्ट और वकी स्पोर्ट मापोली इरफान भूरे फैम टीम। चौथा मुकाबला एक और कांटे की टक्कर मयूरेश संजय मात्रे फैम टीम मयूरेश स्पोर्ट और नूरुल ऐन शेख फैम टीम नवाब स्पोर्ट। और कल आखिर में एक और बड़ा मुकाबला बंटी स्पोर्ट उकसे बोरोली और पाइनियर।
यासिर आक्रमण जारी रखते हुए, अटकी हुई गेंद ऊपरी सिरा बल्ले का, लेकिन शॉट फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं और पीछे मिस फील्ड। 4 रन। You are in the mix with DJ Joe. सिर्फ गेंद नहीं घूमी, यहाँ से मैच भी घूम गया। हालांकि गेंद घूमी थी और मिस जज कर चुके थे, मिस की हुक शॉट था। अब रन किस तरह आ रहे हैं ये जरूरी नहीं, रन आना जरूरी। एटीएम से कौन सी नोट निकल रही है ये थोड़ी देखना चाहिए, जो अमाउंट निकल रहा है वो सही है या नहीं। लेकिन आजकल पुराने भी तो नहीं निकलने चाहिए। टॉपेज लगा था, ये देखिए, ओह दूर रह गए थे वहां पर आतिश पाटिल। आलोक मुकादम 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीतने के लिए चाहिए 6 रन। लॉफ्टेड शॉट, कैच लिया लेकिन नो बॉल। ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। जिस तरह से हालांकि कैच लिया, बैट्समैन रनआउट भी हुए हैं, लेकिन आलोक मुकादम तो बच गए। किसकी करनी और किसकी भरनी। फ्री हिट है यहाँ पर, 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए 50 रन हो चुके हैं। अब सिर्फ 4 रन चाहिए, और वो भी जो नए बैट्समैन सामना करने जा रहे हैं। सागर को क्या पता था कि उनके हाथ में पहले ही मिठाई का बॉक्स दिया जाएगा। फ्री हिट का सामना करने जा रहे हैं। ऐसे में विनिंग शॉट भी खेल सकते हैं, फ्री हिट है। मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है रमलीग स्पोर्ट्स ने। मात्र 4 रन दूर है जीत से, 11 गेंदें शेष। मराठा पंजाब को बहुत कुछ सोचना होगा इस मैच के बाद। रमलीग स्पोर्ट्स के लिए कल्पेश ने लाजवाब गेंदबाजी की, 2 ओवर में 11 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की। फ्री हिट, अच्छी गेंद बल्ले के जड़ से खदेड़ते हुए लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। ओह, अब आवश्यकता नहीं थी तो डायरेक्ट हिट हुआ और दूसरा रन भी पूरा। अब सिर्फ 2 रन चाहिए रमनी कोहली को अगली पायदान पे पहुंचने के लिए। दिस इज द पुअर परफॉर्मेंस सो फार फ्रॉम मराठा पंजाब। फर्स्ट इन बैटिंग, देन इन बॉलिंग। घुमा दिया है, 1 रन पूरा। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी हां, पलट चुके हैं और इसके साथ ये मुकाबला जीत लिया है रमनीक स्पोर्ट्स ओवली ने। 8 विकेटों से काफी बड़ी जीत दर्ज की है। एक बहुत बड़ा उलटफेर ये माना जा सकता है। मराठा पंजाब एनसीपी कप से बाहर। बिग अपसेट हम देख रहे हैं। अनेक अनेक अभिनंदन मुकेश जोशी एंड रमनी कोहली एंड 8 लाख योगेश बेर एंड मराठा पंजाब। इस तरह के परफॉर्मेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है। उस दिन मैंने कहा था कि आलोक मुकादम आउट हुए और ऐसे लग रहा है कि ताला लग गया है, लेकिन आज आलोक मुकादम चले, सब चले और मैन ऑफ द मैच है आलोक मुकादम। इस ग्राउंड पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी हमेशा करते हैं। कुल मिलाकर 39 रन पे नॉट आउट रहे, 1 विकेट लिया। अब आइए जीत की शुरुआत जिल्लू भाई की मिठाई के साथ। आपके स्पॉन्सर मुकेश जोशी के हाथों से हम आपको मिठाई का डब्बा दे रहे हैं, और नूरुल एंड शेख जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है आपको वो गिफ्ट हैम्पर देंगे। वेल प्लेड। मुकेश जोशी साहब आपको मिठाई देते हुए नूरुल एंड शेख साहब गिफ्ट हैम्पर देते हुए। अनेक अनेक अभिनंदन आलोक मुकादम। सबसे पहले तो इस बड़ी जीत के लिए आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बताइए कि बहुत दिन के बाद इस स्पर्धा में पॉइनियर और रमनी कोहली, ये 2 टीमें, इन्होंने अब अपना गेयर चेंज किया, अपना खेल बदल दिया है। एक बड़ी टीम को हराने के बाद कहते हैं कि मॉरल काफी हाई होता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये जो जीत थी इसमें टीम वर्क बहुत अच्छा नजर आया, कमिटमेंट बहुत अच्छा था। इसका सारा क्रेडिट आप किसको दे रहे? सारा क्रेडिट मैं टीम को देना चाहूँगा और बॉलर लोगों को, क्योंकि हमारी गेंदबाजी के वजह से इस साल हम थोड़ा वीक लग रहे हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर लोग, तो इसके लिए हम स्ट्रांग लग रहे हैं। आगे बहुत से टूर्नामेंट है, बाली ट्रॉफी दस्तक दे रही है, लेट देवीदास कप होने जा रहा है। क्या लगता है कि टीम इसके बाद वाले मैच में इससे अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमेशा प्रयास करते हैं हमारा अच्छा देने के लिए, लेकिन आगे क्रिकेट है, आगे देखते हैं अच्छा ही करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये थे आलोक मुकादम, मैन ऑफ द मैच। प्लेयर्स स्टैंड में सिर्फ खिलाड़ी रहेंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। और प्लेयर्स स्टैंड के सामने जो सपोर्टर्स हैं आपको हट जाना है वहां से। चरण, आलोक मुकादम चरण को 2 मिनट के लिए यहां भेज दे आप।